Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mohammed Umair, your English language teacher. I hope you will be fine and surviving a good life. And welcome to all of you in your next grade. Yes, you have been promoted in your next grade, so I welcome you and I am prayerful for you that you will be successful uh, in your next grade. Okay, so this is going to be something new for you because you are not sitting in the class, you are attending the class by sitting at home. So you will have to make an effort. Yes, you will have to make an effort because we teachers are also making an effort to educate you. So you will also have to make an effort to uh, to educate yourself and to cooperate with us. Okay, so now this is going to be your new academic year. So what are we going to do? I will tell you time by time that what are we going to do. But first of all, I would like to show to you students one of the important thing. It is that this is your units division, class 8 units division. Means in the first assessment, not in the, yeah, in the first assessment we are going to learn this unit. You are going to learn this unit, a shot in the dark. आ शॉट इन द डार्क से पहले आपका एक जो है ना वो पोएम है, व्हेन आई हर्ड द लर्न एस्ट्रोनॉमर, ये फिर इसके बाद आपके पास शॉट इन द डार्क, देन न्यू कमर, देन द सिल्वर लाइनिंग, द सॉलिटरी रैपर, द एडवेंचर ऑफ डाइंग डिटेक्टिव। ये आप तमाम जो है ना वो इस असेसमेंट में पढ़ेंगे। आफ्टरवर्ड्स आप आगे मूव करेंगे तो ये आपके पास मिड टर्म है। मिड टर्म में आप ये चैप्टर्स करेंगे, फिर इसके बाद आपके पास सेकंड असेसमेंट में है, इसमें आप ये चैप्टर्स करेंगे। आगे जब हम मूव करेंगे तो आपके पास ये फाइनल टर्म के कुछ चैप्टर्स भी दिए हुए हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ, या फाइनल टर्म में चैप्टर्स करेंगे। ओके, दीज ऑल आर योर चैप्टर्स डिवाइडेड। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि देयर शुड बी इन योर नॉलेज दैट हाउ मेनी चैप्टर्स यू विल लर्न इन द फर्स्ट असेसमेंट एंड हाउ मेनी इन द सेकंड असेसमेंट। इफ समबडी आस्क्स यू, सो यू मस्ट रिप्लाई दैट दीज आर द चैप्टर्स फॉर द फर्स्ट असेसमेंट, दीज आर फॉर मिड टर्म एंड दीज आर फॉर द सेकेंड असेसमेंट। ओके, नाउ मूविंग अहेड, आज की पहली जो हमारी क्लास है उसमें जो है ना हम थोड़ी सी रीडिंग वगैरह करेंगे और थोड़ा सा हम काम करेंगे, उससे रिलेटेड हम स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट मी स्टार्ट यू। जो पहला हमारा आज का रीडिंग का जो टॉपिक है वो इट इज़ अबाउट द यस व्हेन आई हर्ड द लर्न एस्ट्रोनॉमर। ये एस्ट्रोनॉमर के बारे में बात की जा रही है। व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट द एस्ट्रोनॉमर, हु इज़ एस्ट्रोनॉमर एंड many of the things that I think you have not listened the word astronomer before. Yeah, this is going to be new for you. So what they will be talking about, let's see what do they talk and what do they discuss. Okay, first of all let's read the words to know, because words to know are very good, and if you first read the words to know, so you will not have any difficulty in reading. Okay, the astronomer, a scientist who studies stars, moons, okay, planets and other objects in space। हाँ, कहा जा रहा है कि एस्ट्रोनॉमर वो बंदा होता है जो कि स्टडी करता है किस चीज़ को, स्टार्स को, सितारों को, मून को, प्लैनेट्स को, सैयारों को। ओके, एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। खला, स्पेस कहते हैं खला। खला में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनको जो स्टडी करने वाला बंदा होता है ना, वो सारे वो आपके पास क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉमर कहलाता है, the astronomer। okay, now the word, next word is learn, and learn, well educated usually written as learn। हाँ, ये जो learn है ना ये इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना, और इस तरह से भी लिखा जाता है। तो दोनों वेज आपको बताया जा रहा है कि well educated usually written as, well learned का मतलब well educated, अच्छा पढ़ा लिखा बंदा, pronounced with two syllable। ये जो learn word है two syllable के साथ प्रोनाउंस किया जाता है, ये आगे सारी इसकी प्रोनाउंसिएशन रखी हुई। ओके, lectured means a lecture is a talk or a presentation on a subject। yes, very good meaning। lecture का मतलब है कि a lecture is a talk, एक lecture जो है ना वो एक talk है। talk means एक बात है, on और presentation, या एक presentation है on subject और a topic, किसी भी एक topic पर कोई बात करना, that is called a lecture। ओके, फॉर एग्जाम्पल बिहेवियर इज अ टॉपिक, इस पर बात करना ये एक लेक्चर कहलाएगा। इफ समबडी इज टॉकिंग ऑन बिहेवियर, सो इट मीन्स ही इज गिविंग अ लिटिल बिट ऑफ लेक्चर, थोड़ा सा लेक्चर दे रहे हैं। ओके, आगे मूव करते हैं। लेक्चर रूम, ओके, इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में, पीपल ऑफन वेंट टू लिसन
to talks by experts on a range of subjects. Okay, these were held in public rooms or in community halls. Okay, और हैविंग इंस्पायरिंग ए वो फैसिनेशन. हाँ, कह रहे हैं कि लेक्चर रूम वो होता है जहाँ पर कोई टॉक जो है ना वो हेल्ड की जाए, जैसे कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पर कुछ किसी स्पीकर को, पब्लिक स्पीकर को, किसी डॉक्टर को सुना जा रहा है, तो इट मीन्स दैट इज लेक्चर रूम कहा जा रहा है. 19th सेंचुरी में जो है ना लोग लाइब्रेरी लोग जाया करते थे एक्सपर्ट्स को सुनने के लिए, ठीक है ना, अलग अलग मौजू पर. सो वो जिस कमरों में बैठा करते थे वो जो है ना वो कम्युनिटी हॉल्स कहलाते थे या पब्लिक रूम्स कहलाते थे या लेक्चर रूम्स. इन द 19th सेंचुरी उन्हें कम्युनिटी हॉल्स कहा जाता था, फिर उन्हें पब्लिक रूम्स कहा जाने लगा, अब जो है ना उन्हें लेक्चर रूम्स कहने लगा. सो एज द एरा इज चेंजिंग द वर्ड्स आर ऑल्सो गेटिंग मॉडर्न, एज यू आर गेटिंग मॉडर्न. जैसे आप मॉडर्न होते हैं इसी तरह वर्ड्स भी मॉडर्न होते हैं. ओके, नाउ मस्टिकल हैविंग और इंस्पायरिंग ए वो फैसिनेशन. हाँ, कह रहे हैं कि मस्टिकल का वर्ड हमारे पास है ना, आ फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट, कि आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट फील कर रहे हैं, इंस्पायरिंग फील कर रहे हैं अपने ऊपर. सो इट मीन्स यू आर फीलिंग मस्टिकल. प्रूफ्स एविडेंस दैट इज़ मैथमेटिकल इक्वेशन इज़ ट्रू. हाँ, कह रहे हैं प्रूफ्स बेसिकली सबूत को भी आम लैंग्वेज में कहा जाता है कि एविडेंस दैट मैथमेटिकल इक्वेशन इज़ ट्रू. आप कोई मैथमेटिकल इक्वेशन को साबित करने के लिए कोई जो आप जो पेश करते हैं जिस चीज़ को, वो आपका एविडेंस कहलाता है. ओके, अच्छा, अब ये पोएम मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा. वर्ल्ड वाइटमैन ने लिखी ये पोएम, वो बता रहे हैं पोएम के बारे में, ठीक है ना. अब आप अपनी बुक्स में देखें या यहीं पर आप देख लें तो भी ये बेहतर रहेगा, बिकॉज यहाँ पर बिल्कुल पीसफुली मैं आपको एक एक चीज़ उर्दू में, इंग्लिश में, दोनों में आपको क्लियरली बिल्कुल ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके, आगे मूव करते हैं. कह रहे हैं कि व्हेन आई हर्ड द लर्न एस्ट्रोनॉमर, जब मैंने ये वर्ड सुना, लर्न एस्ट्रोनॉमर यानी पढ़ा लिखा एस्ट्रोनॉमर, जब मैंने वर्ड सुना. व्हेन द प्रूफ्स द फिगर्स वर अरेंज्ड इन कॉलम्स बिफोर मी. हाँ, कहा जा रहा है कि वाइटमैन कह रहे हैं कि जब मैंने वर्ड एस्ट्रोनॉमर सुना और जब मेरे सामने प्रूफ्स और फिगर्स, इक्वेशंस, तमाम चीज़ें वर अरेंज इन कॉलम्स में रख दी गई बिफोर मी, मेरे सामने, मुझसे पहले. व्हेन आई वॉज शोन द चार्ट्स, जब मुझे चार्ट्स दिखाए गए, एंड डायग्राम्स, और डायग्राम्स दिखाई गई, टू एड, डिवाइड एंड मैयर देम. हाँ, कहा जा रहा है कि वाइटमैन कहते हैं कि जब मुझे जो है ना वो अलग अलग तरह की डिवाइसेस दिखाएंगे, अलग अलग तरह की चीज़ें दिखाएंगे, डायग्राम्स दिखाई गई, ठीक है ना, रिलेटेड स्टार्स, मून्स एंड प्लैनेट्स, इन चीज़ों के रिलेटेड जो है ना उनको जब चीज़ें दिखाई गई. व्हेन आई सिटिंग हर्ड द एस्ट्रोनॉमर, जब मैं बैठा हुआ था और जो है ना लेक्चर रूम में और एस्ट्रोनॉमर को सुन रहा था, वेयर ही लेक्चर्ड विद मच अप्लाउज. हाँ, जहाँ पर वो जो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है लेक्चर दे रहा था इन द लेक्चर रूम. ओके, व्हेन हाउ सून अनअकाउंटेबल आई बिकेम टायर्ड एंड सिक. हाँ, और मैं जो वहाँ पर काफ़ी देर बैठने के बाद जो है ना वो सिक अपने आप को महसूस करने लगा और टायर्ड जो है ना वो महसूस करने लगा. टिल राइजिंग ग्लाइडिंग आउट आई वंडर्ड ऑफ माई सेल्फ. लेकिन जब मैं उठा तो उस वक्त मैंने वंडर्ड, अजीब सा कुछ महसूस किया, टू माई सेल्फ. ओके, इन द मस्टिकल मॉइस्ट नाइट एयर एंड फ्रॉम द टाइम टू टाइम. मतलब इस यहाँ पर इसका मतलब ये है कि ये जो का बताया जा रहा है ना कि वॉल्ट वाइटमैन जो है ना बता रहे हैं कि ही वॉज फीलिंग नॉट एज गुड एज ही शुड, बिकॉज क्योंकि उन्हें जो है ना इन चीज़ों के बारे में, प्लैनेट्स और मून और इसके बारे में, मून्स और स्टार्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी. सो दैट्स वाई ही इज़ नॉट फीलिंग मच गुड. लुकड अप इन द परफेक्ट साइलेंस एज स्टार्स, और मैंने खामोशी से जो है ना परफेक्ट साइलेंस में जो है ना स्टार्स की तरफ देखा. सो दिस यहाँ पर जो है ना वो पोएम आपकी ये एंड हो जाती है. दिस इज़ ऑल द वाइटमैन स्पीकिंग. ठीक है ना, आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, चीज़ें थोड़ी सी चीज़ें समझ में आई होंगी कुछ ना कुछ इसके एस्ट्रोनॉमर के बारे में. कि एस्ट्रोनॉमर जो होता है ना वो स्टडी करता है स्टार्स के बारे में, मून्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, और स्पेस के अदर ऑब्जेक्ट्स के बारे में. ठीक है, अच्छा, अब आप वर्ड्स नो पर हाईलाइट कर लें कौन से लिखेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको लिखने का क्राइटेरिया बता रहा हूँ. ठीक है ना, आप लिखेंगे एस्ट्रोनॉमर भी आप लिखेंगे. ओके, लर्न ये जो वर्ड है इसको जो है ना आप कहाँ तक लिखेंगे, वेल एजुकेटेड, यूजली एंड प्रोनाउंस विद 2 सिलेबल, बस 2 सिलेबल तक. अब इसके सिलेबल्स क्या हैं वो आप नहीं लिखेंगे, बस यहाँ तक जो है ना आप एंड कर देंगे, यानी यहाँ तक.
टू सिलेबल्स तक आप लिखेंगे। आगे जो सिलेबल्स नहीं है वो आप नहीं लिखेंगे। लेक्चर, ये भी आप वर्ड लिखेंगे। लेक्चर रूम भी आप लिखेंगे 1 2 3 4 एंड द लास्ट ये आप लिख देंगे प्रूफ्स। ओके, ये फर्स्ट 5 वर्ड्स हो गए। लिखने किस तरह ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। आफ्टरवर्ड्स आगे आप चलते हैं ना, तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, ये आपके क्वेश्चन एंड आंसर से, ठीक है। मैं इसको कुछ इस तरह से रखता हूँ, आप वीडियो को थोड़ा सा टर्न करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपके क्वेश्चन एंड आंसर से, ये आपकी हेडिंग है मेन, व्हेन आई लर्न, इसको मैंने लिख दी है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन नंबर ए आप लिखेंगे, आंसर नंबर ए आप फिर लिखेंगे, फिर देन आप क्वेश्चन नंबर बी लिखेंगे, आपको आंसर नंबर बी लिखेंगे, फिर आप क्वेश्चन नंबर ई लिखने के बाद आप आंसर नंबर ई लिखेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन एंड आंसर से। अच्छा, अब आपका लिखने का क्राइटेरिया क्या है कि आप किस तरह जो है ना वो आपने चीज़ों को पेश करना है कॉपी में, ये भी मैं आपको बता दूँ। थोड़ी सी चीज़ें चेंज करेंगे। स्टार्टिंग में तो आप हेडिंग्स वगैरह एज़ यूजुअल आप क्लास 7 में, ग्रेड 7 में पुट किया करते थे, उसी तरह पुट करेंगे। इसके बाद जब आप आगे मूव करेंगे तो अब देखें ये पूरी एक टाइप की कॉपी ही है, ठीक है ना। मैंने इसमें मज़ीद क्लासेस को समझाया, आपको मैं समझाना चाहूँगा। आई होप कि आपको बिल्कुल तमाम चीज़ें क्लियर समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल इजीली आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल स्मूथ में मैं समझा रहा हूँ। कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है मेरी, और कोई इतनी ज़्यादा मैं इंग्लिश का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा। आपको आई होप यू विल बी गेटिंग इट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेट पुट करेंगे। ये 2 पेजेस हैं, जिस तरह आपकी कॉपी में पेजेस होते हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अब डेट पुट करने के बाद आप यहाँ पर अपनी हेडिंग पुट करेंगे, ठीक है ना। हेडिंग आपकी जो है ना, ये व्हेन आई हर्ड द लर्न एस्ट्रोनॉमर, ये आपकी चैप्टर की हेडिंग है, ठीक है। ये आपकी हेडिंग जो ना, यहाँ पर स्टार्टिंग की 2 लाइंस, मैंने यहाँ पर लाइंस लगाई हुई आप देख रहे होंगे। स्टार्टिंग की 2 लाइंस में, पहली और दूसरी, इन दोनों लाइनों में आपकी हेडिंग आ जानी चाहिए, ठीक है ना। इससे ज़्यादा आप इतनी बड़ी हेडिंग आप 3 लाइन में, ये 3 लाइनों में जा चुकी है, बट यू विल नॉट गो, यू विल ओनली पुट योर हेडिंग इन द 2 लाइन्स। आफ्टर दैट देयर इज़ अ वर्ड रिटन गेराल्ड ड्यूरल, ठीक है ना। आपने गेराल्ड ड्यूरल लिखना, आपने हेडिंग ये व्हेन आई हर्ड द लर्न एस्ट्रोनॉमर पुट करने के बाद आपने ये इंडेक्स पेज पर जाना है टेक्स्ट बुक में, और देखना है आपने कि ये जो हर्ड लर्न एस्ट्रोनॉमर की जो है ना वो पोएम है, ये किसने लिखी है, उस राइटर का नाम जो है ना आप यहाँ पर लिख देंगे इसकी जगह पर, ठीक है। फिर इसके बाद आप वर्ड्स टू नो की हेडिंग पुट करेंगे, इसी तरह कुछ स्पेस यहाँ कुछ स्पेस यहाँ देकर, और वर्ड्स टू नो की हेडिंग भी आपकी एक ही लाइन में आनी चाहिए, इससे ज़्यादा नीचे और इससे ज़्यादा ऊपर 2 लाइन्स में नहीं जाएगी, आपकी हेडिंग इतनी ही स्पेस में होगी। आफ्टरवर्ड्स ये आप यहाँ से यहाँ तक जो है ना आपका मार्जिन ड्रॉ होगी, डबल मार्जिन आप ड्रॉ करेंगे, और मार्जिन बिल्कुल यहाँ तक नहीं लेकर जानी, पहले ही एक आपने यहाँ तक छोड़ देनी है। मार्जिन डबल मार्जिन ड्रॉ करके यहाँ वर्ड्स लिखेंगे, यहाँ इसकी मीनिंग लिखेंगे। और वर्ड्स टू नो की हेडिंग आप ऐसे नहीं पुट करेंगे कि यहाँ वर्ड्स पुट करें या मीनिंग पुट करें, नो, द कंप्लीट हेडिंग वर्ड्स टू नो। आफ्टर दैट ऑन द नेक्स्ट पेज यू विल गो, देयर विल बी योर हेडिंग, here date and here will be the heading of question answer, simple only question and answer, बस no nothing much, कुछ ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। ओके, ये आप जो है ना यहाँ पर ये 2 लाइन्स में ही आपकी हेडिंग आनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपकी हेडिंग नहीं जानी चाहिए। ओके, आगे हम मूव करते हैं, आगे से हम मूव करते हैं, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, दिस कॉल्ड योर बॉर्डर, इन द बॉर्डर, ये आपका स्पेस है, इसी के अंदर आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, आप क्वेश्चन लिखेंगे, और आप जो है ना वो यहाँ पर आपका क्वेश्चन सीख देंगे। अच्छा, आप क्वेश्चन देखने के बाद जब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो अगेन आपको मैं आगे की एक्टिविटी बता दूँ। आपने क्या करना है कि एस्ट्रोनॉमर के बारे में रिसर्च करनी है थोड़ी सी। हु इज़ एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं ये कौन होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे पाकिस्तान के कुछ स्पेसिफिक एंड वेल नोन एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में आप रिसर्च करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। और रिसर्च करने के बाद आप क्वेश्चन एंड आंसर के बाद जो है ना वो आप यहाँ पर हेडिंग पुट करके आप यहाँ पर जितना भी लिखना चाहें वहाँ पर लिख देंगे। मैक्सिमम 10 to 15 लाइन्स आप लिखिएगा रिसर्च करके, ठीक है। बिकॉज यू आर सिटिंग इन द होम, आपको कोई बाहर नहीं जाना, सो यू विल हैव अ मच टाइम, आपके पास अच्छा खासा वक्त में, उसमें आप रिसर्च करके अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाकर आप अपने वक्त से फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, सो नाउ दिस इज़ ऑल फ्रॉम हेयर फ्रॉम माय साइड, मेरी तरफ से तमाम चीज़ें थी। मैंने आपको बिल्कुल जो है ना वो लेमन लैंग्वेज में बिल्कुल आसान तरीके से समझाया है। आई होप यू विल बी गेटिंग इट। ओके, सो नाउ दिस इज़ ओवर फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।